ठीक है। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। उस दिन हमने टॉपिक किया मॉडल से रिलेटेड। पहले आप बता दो, अगर आपका कोई डाउट हो तो मैं पहले वो सॉर्ट कर दूं। मॉडल से रिलेटेड तो नहीं है डाउट। मॉडल्स नहीं, मॉडल्स। मॉडल्स आ गया समझ में जितने भी हमने हाँ। उस दिन किए थे। हाँ। ठीक है, दो एक मॉडल्स और रह गए थे, पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर आगे का पार्ट उसके बाद डिस्कस करते हैं। एक है मॉडल विच इज मस्ट। कोई चीज अगर कंपल्सरी है, नेसेसरी है, करनी ही करनी है, इसको नहीं करके कोई मतलब कहीं हम जा नहीं सकते, इसको इससे पीछे नहीं जा सकते, तो हम हमेशा मस्ट लगाएंगे। जैसे जो स्कूल बच्चे होते हैं उनको यूनिफॉर्म में जाना कंपलसरी होता है, एक दिन भी वो कैजुअल्स में नहीं जा सकते एक्सेप्ट फॉर देयर इवेंट्स। So if I have to say to a student of a school, how will I say? You must go in uniform every day. You must be in neat and tidy uniform every day, otherwise you will get punishment. तो उन बच्चों के लिए ये कंपलसरी पार्ट है कि उन्हें रोज नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म में जाना है। यू मस्ट डू दैट। तो मतलब मैं जब कोई चीज को कंपलसरी डिक्लेयर कर रही हूँ कि ये करना ही करना है। Our government always suggests us that we must follow traffic rules and we must wear helmets because it is for our safety. And if we don't follow the traffic rules, we'll be penalized. इस तरह से हाँ, लोग ब्रेक करते हैं रूल्स, वो एक अलग बात होती है, लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन कंपलसरी है ना कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाओ, हेलमेट पहनो, जेब्रा क्रॉसिंग पे पहले ट्रैवलर्स को क्रॉस करने दो, अपनी गाड़ी उससे पहले रोको। सो दीज रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड, दे आर कंपलसरी फॉर अस। In that ways we can use the modal must. Sweetie is here. Hi sweetie. स्वीटी आज भूल गए थे क्या आप क्लास का? हाय मैम। क्या हुआ स्वीटी, कहाँ थे? वो ना मेरी प्रेजेंटेशन है कल, इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ रही थी। अच्छा स्वीटी, एक चीज मैं बोलूंगी, सबको बोलूंगी, कभी भी ऐसा हो ना, आपको लीव लेनी है, आप लेट हो रहे हो, किसी भी एक जन को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि हम आपके लिए वेट कर रहे थे और सेशन हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया बिकॉज सुरभि और एकता ने बता दिया था वो नहीं आ रहे, बट हम बहुत देर से आपके लिए वेट कर रहे थे। स्वीटी सुन रहे हैं आप? Can't hear you. Sweetie, can you hear me? नहीं सुन रहे। What do you suggest, Srishti? Should we reschedule? नहीं, we'll continue, Adiba. We both are here. Sweetie is also here. We'll continue. She has internet issue always. Sweetie, please check your network, हाँ? Okay. मैं एक बार ये repeat करती हूँ, must वाला part सबके लिए. Whenever something is a compulsion or a necessity for me, I need to do it. I need to follow the rules, regulations of the government, of my society, of my company, my boss. If they give me some rule that this has to be followed, that means it is a must condition for me. So I'll write some examples. Okay. We must follow traffic rules. One sentence showing compulsion. Students must be in proper uniform. Yeah. Neat and tidy uniform as described by the school authority. And
we must follow time management, because when we are working, when we are in school, college, or when we are going to office, the important factor that comes up is time management. If we don't follow time, if let's say me and Adiba, we are going for a meeting and I am late for no reason, I did not even inform that I will be late. That means first I disobeyed the rule. I later explained why I was late, but it will not be considered. Then it happened the second day. I was going out and suddenly I realized I have some other work. So I changed my way. I got late for my first work. So here I'm not following time management. However, it is a must condition for me, something which is necessary, important. Then after must, I have need. Need. Must is showing some compulsion or necessary action. I've written the word necessary here. Instead of this, I will write necessity. Something which I really need, without which I cannot sustain. I, as in any person. Like everyone needs water for survival. Without water, we cannot sustain. We need water. Plants need to have water. Otherwise, they will not be able to grow. They will fade away. So plants also need water like human beings. Necessity. Yeah, true. Besides water, we also need food. So instead of water, I can write food, oxygen, shelter, clothing, anything. That is the sheer necessity, without which I cannot sustain. If I write this sentence, is this correct? And Adiba and Sweetie, if you can tell me, I need money right now. I need something right now, immediately. Yeah. It is. Correct? Yeah. Yes, ma'am, correct. Okay. Or I need some. Okay, I need tickets for the movie right now. Is it correct? Is it my necessity? Sweetie? No, ma'am. Okay, why? What did you ask? Sorry. Huh. So my second sentence was, I need movie tickets. Is this sentence correct? Yes. I need movie tickets. Is it very essential for me? No, Necessary? that is, yeah, not that essential, but it will vary on depending upon situations sometimes. Absolutely. Absolutely. So suppose I am standing outside the theater. It's my favorite movie. I'm really dying to watch that movie. So for that duration of time, it will become a necessity for me. But Yeah. that doesn't mean that I can't survive without a movie ticket. Yeah, that is true. But without water, electricity, food, shelter, clothing, I might not be able to survive properly. So that is my necessity. So yes, I can use need at any point of time. It is just that I need to be clear with the context used. In which context I am putting need, what is the situation, I should be correct with it. Clear? आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए एक बारी प्लीज शॉर्ट में. Okay. मैं और मोटिव्स देखती हूँ क्या रहेगा.
लेट मी नो जब आप दोनों ने लिख लिया हो तो मैं आगे बताऊंगी. Yes, done. डन. Yeah. स्वीटी, यस मैम, हो गया मैम. श्योर, समझ में आ गया ना दोनों को? सेम तो नहीं लग रहा ना मस्ट और नीड? नहीं, सेम तो नहीं है. सेम नहीं है. हम्म. दोनों का यूजेज कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है. हम्म. अब आता है यूज टू, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. जब भी मैं किसी से कोई पास्ट टेंस का क्वेश्चन पूछती हूँ, कोई पिछली बात कहती हूँ, मैक्सिमम लोग, आई वुड से 80% पीपल, दे पुट यूज टू throughout the conversation without realizing what is the actual use of using used to. Used to होता है जैसे पास्ट में मैं कोई एक्टिविटी, बचपन में मैं कोई एक्टिविटी या कोई हॉबी रखा करती थी, पर आज की डेट में या तो वो हॉबी या वो हैबिट बिल्कुल भी नहीं है, या कुछ एक्सटेंट तक है, थोड़ी बहुत है. तो जैसे अगर मैं एक ये सेंटेंस लिखूं, I used to have a pink bag when I was a kid. पर अब तो मैं छोटी नहीं हूँ. अब वो पिंक वाला स्कूल बैग तो शायद मेरे पास नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो एज अ मेमोरी पड़ा होगा. आई एम नॉट यूजिंग इट. आई कांट यूज इट एनीमोर. या Yeah. Yes. तो ये तो मेरी एक कोई एक बात हुई. किसी की हैबिट अगर मुझे लिखनी है, मैं किसी की कोई बात बता रही हूँ. जब रमन 18 इयर्स का था, वो बहुत स्मोक किया करता था. आज का मुझे नहीं पता करता है नहीं करता, पर जब वो 18 इयर्स का तब तो बहुत ज्यादा करता था. ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट. Hmm. So I'm referring to, in both the sentences, I'm referring to some past activity, habit or hobby, which now the person or I, we have discontinued, or maybe we have decreased the proportion. रमन पहले ज्यादा स्मोक करता था, किया करता था, अब थोड़ी कम करता है. अब उसने कंट्रोल कर लिया. ऐसे भी बोल सकती हूँ. या रमन अब तो बिल्कुल स्मोक नहीं करता, लेकिन पहले तो बहुत करता था. तो जो एक्टिविटी भूली बिसरी हो चुकी है, जा चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, सिर्फ वहीं पे मैं यूज टू का इस्तेमाल करूंगी. पास्ट टेंस के हर क्वेश्चन में नहीं करूंगी. कुछ ऐसे. इसको लिख लो प्लीज, ऐसे इसी फॉर्म में लिखो. ये मैं थोड़ा शॉर्ट सिंप्लीफाई करके बनाती हूँ, ये एक ही बार में समझ आ जाए. Done. ठीक है. स्वीटी, आपने लिख लिया? He has. म्यूजिक. I don't know.
where she lives, how she attends her other classes, MBA classes. अच्छा, शी इज डूइंग एमबीए. Yeah, अच्छा अच्छा. MBA or BBA, something like that. ये आदमी बोल भी MBA, रहा है. I guess. अच्छा, अच्छा, सही है. बेटी, क्या आप सुन पा रहे हो हमें? यस मैम सिर्फ सुन इसी रहे हैं। टाइम इश्यू होता है स्वीटी, या नॉर्मली भी इश्यू रहता है इंटरनेट का? अगर इसी टाइम होता है तो आप अपना बैच का टाइमिंग चेंज कर सकते हो, 5 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लो. बिकॉज ऐसे तो आपके प्रोग्रेस में प्रॉब्लम आएगी. I will talk to you after the class or tomorrow. I need to talk to her, I guess. Yeah. ऐसे तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी ना सीखने में. नहीं नहीं, सही बात. हाँ. ऐसे She is- काफी कुछ सुनेगी, कुछ छूटेगा. हाँ. जैसे मैंने 10 मिनट पहले कुछ बताया, 10 मिनट वापस रिपीट करना मुश्किल हो जाता है. Yes, right. वो एक दो लाइंस तो मैं बता दूं दोबारा, ठीक है. No problem. एक बार मुझे स्वीटी बताइए, यूज्ड टू वाला पार्ट आ गया तो मैं आगे बढ़ूं. I think we can continue. Any which ways I am going to send recordings, so I will share with her as well. ठीक है. अब अदीबा, अगर आपने पिछले वाले टॉपिक्स लिखे हो, एक बार मुझे बता दो कोई मॉडल रह तो नहीं क्या? जस्ट फॉलोइंग आउट. विल, वुड, Yeah. मे, Better. माइट, मस्ट, Yeah. मस्ट, शैल, शुड. शैल Shall is yeah. Shall, we have not done shall. Can, could, ought, we have done all of this. Shall is remaining. शैल मैं बताती हूँ. शैल भी इजी है. Shall, okay. Shall pronounce करेंगे ना, shall. Shall नहीं बोलेंगे, right? शैल. Shall. शेल वो होता है जो समुद्र में से सीप निकलता है ना, Yeah. SHELL, दैट इज शेल, जिसमें इसके अंदर मोती होता है. Yeah. हाँ स्वीटी, बिल्कुल. यूज टू पास्ट की हैबिट के लिए होता है. हैबिट की स्पेलिंग मैंने लिख दी है चैट बॉक्स में. यहाँ पे मैं कोई कमिटमेंट, कोई सेल्फ प्रॉमिस की बात कर रही हूँ. प्रॉमिस. अब आई शैल गो टू द पार्टी, ऐसा नहीं है कि अरे मैं अपने आप से पक्का वादा करती हूँ मुझे पार्टी में जाना है. नहीं, मैं पार्टी के लिए रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ, मेरा माइंड सेट है. सो आई कैन से आई शैल गो टू द पार्टी. आई विल गो टू द पार्टी, वो जब हमने बिल्कुल श्योरिटी वाली चीज कही वो भी ठीक है. आई शैल गो टू द पार्टी, इस कॉन्टेक्स्ट में शैल लगाना बिल्कुल सही है. एक मतलब बहुत ही, जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ. नहीं मैं जाऊंगी. अच्छा. मैं जाऊंगी. ये पोएम सुनी है सबने? वी शैल ओवरकम वन डे. या राइट. शैल आता है. हाँ. वी शैल ओवरकम मतलब हम इससे जरूर उभरेंगे, इससे जरूर बाहर आएंगे. एक दिन, वन डे, एक दिन आएंगे. कुछ फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ, प्रेजेंट की तो नहीं हो रही. इमीडिएट फ्यूचर भी हो सकता है, नेक्स्ट 5 मिनट्स में भी हो सकता है. आई शैल स्लीप आफ्टर 5 मिनट्स. ठीक है, it is also possible, but I am making some kind of commitment, self promise, therefore I am using shall. I or maybe anyone else. But it sounds like कि हाँ मैं ये करूंगी, ऐसे थोड़ा सा डाउटफुल जैसा साउंड करता है मुझे. ऐसा करता है. I might do this work. Might जहाँ लग गया वहां पे शायद लगा दो. शैल शायद नहीं कह रहा है, शैल कह रहा है कि हाँ फ्यूचर में होने वाली कोई घटना है जो आप करोगे, करना चाहोगे. हाँ, तो जैसे if somebody asks Adiba, you have to follow this and you have to send these mail, so I shall do it as soon as possible. Correct. All the three sentences will be correct here. I shall do the work ASAP. I will do the work ASAP. I would like to do the work ASAP. तीनों सही. Okay.
आई वुड बी डूइंग द वर्क एसएप, तीनों सही है। तीनों का तीनों बस है ना हल्का सा मतलब बदल गया। हम्म तीनों सेंटेंसेस में आपने कमिटमेंट दे दिया, श्योरिटी दे दी कि आप वो काम जल्दी से जल्दी पूरा कर दोगे, बस थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस आ गया। हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँ ना, जैसे आई विल मैं पक्का कर दूंगी, आई शैल मैं कर दूंगी, मैं कर ही दूंगी, मुझे रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं है, इतना मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं जो कमिटमेंट दे रही हूँ मैं कर ही दूंगी। और आई वुड डू दैट, मैं करना चाहूंगी, जल्दी से जल्दी मैं इस काम को पूरा करना चाहूंगी। सिर्फ हिंदी में जैसे ये 3 सेंटेंस है, बहुत थिन लाइन डिफरेंस है तीनों के मतलब में, बात तो समझ में आ गई ना सामने वाले को कि हाँ आप किसी चीज के लिए कमिटमेंट दे रहे हो, फ्यूचर में आप करने का दावा कर रहे हो, तो तीनों सेंटेंसेस सही है, पोलाइट है। Okay. Earlier, I used to think that shall is used to replace will, and बस उसी का, बस मुझे ये नहीं पता था लॉजिक क्या है। हाँ हाँ अभी ना अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, शैल का इस्तेमाल कम होता है, विल का ज्यादा होता है हर सेंटेंस में। तो जब भी फ्यूचर की बात करनी हो ना, सबसे सबसे पहली प्रेफरेंस आप विल और वुड को दे दो, अच्छा। शैल को एक सेकंड प्रेफरेंस दे दो। फिर कब यूज करेंगे हम, कैसे सिनेरियो में, लाइक इफ यू कैन गिव सम एग्जांपल्स। Sure. So Adiba, I will give you one homework today, and I want you to complete it by tomorrow. Will you be able to do that? Yeah, I shall do it by today. Okay. I will do it by today. First preference will को दे दो। Okay. Why? Why? Shall का यूज ओल्ड इंग्लिश में ज्यादा होता था। कभी विलियम शेक्सपियर के प्लेस वगैरह पढ़े हैं? कभी मौका मिला? एनसीईआरटी बुक्स में बहुत होते थे। शैल दाओ दे ऐसे ऐसे कुछ बोलते थे। तो ओल्ड इंग्लिश में शैल का इस्तेमाल ज्यादा होता था एज कम्पेयर टू विल। न्यू इंग्लिश में विल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होने लग गया है, क्योंकि लैंग्वेज के भी ना रूल्स चेंज होते हैं। ओके। लैंग्वेज के रूल्स यूसेज चेंज होते हैं। ओल्ड इंग्लिश तो बहुत ही अलग थी, काफी अलग थी जो हम आज बोलते हैं उससे। हो सकता है आने वाले 50 साल बाद ये वाली भी फॉर्म्स चेंज हो जाए, कुछ और नया आ जाए। तो आज के सिनेरियो में ज्यादा आप फोकस दे सकते हो विल को, प्रेफरेंस मतलब आप विल को दे सकते हो। अगर आपने विल की जगह शैल लगा दिया तो वो गलत कहीं से भी नहीं है। ओके। हाँ स्वीटी, अगर जैसे आपने कभी लाइन लिखी है स्वीटी जो चैट में, पोलाइट के लिए हम वुड लगाते हैं। मैंने ना आज एक एक्सरसाइज सबको असाइन भी करी थी, मेरे को वही डिस्कस करनी थी, बट वो 2 लोग नहीं है तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहेगा उनके बिना, क्योंकि स्पीच प्रैक्टिस है। और उसमें मैंने वुड के यूज को हाईलाइट करवाया था, जहाँ पे वुड पोलाइट एक्सप्रेशंस में कैसे काम आता है, क्योंकि हम सबको प्रोफेशनली कहीं ना कहीं डील करना पड़ता है बोलते टाइम या लिखते टाइम। तो कैसे अपनी कॉन्वर्जेशन सॉफ्ट रखें वो हम रख सकते हैं वुड के इस्तेमाल से ज्यादा वुड 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 का इस्तेमाल करें। आई वुड लाइक टू मेंशन वन पॉइंट इन दिस ईमेल, आई वुड लाइक टू शेयर एन अटैचमेंट इन दिस ईमेल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एम शेयरिंग एन अटैचमेंट, I आई would वुड like लाइक टू to. शेयर एन अटैचमेंट हियर। हाँ उसको भी दिख गया कि आपने अटैचमेंट डाला, लेकिन जो आपके बात करने का लिखने का तरीका है ना, वो मैसेज उसके स्ट्रेट यहाँ दिल और मन दोनों पे पहुंचेगा। वाओ, क्योंकि जब हम पोलाइट बोलते और लिखते हैं उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। चाहे आप दोनों की बात करूं, आप दोनों बहुत स्वीट हो, स्वीटी का तो नाम ही इतना स्वीट है, वेरी स्वीट व्हेन यू टॉक, बहुत पोलाइट हो, लेकिन अगर हमारे वर्ड्स भी उसमें मैच हो जाएं, दैट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन दिस मैनर। और बोलते टाइम इतना पता नहीं चलता, बोल के आप इतना प्यार से बोल रहे हो, सामने वाला आपकी कोई भी बात मानेगा। पर जब आप लिख रहे हो ईमेल, कोई लेटर, कोई आर्टिकल, क्योंकि लिखना भी पड़ता है हमें, बहुत जगह पे बहुत चीजें, लेटर्स भी लिखने पड़ते हैं। अभी तो चलो वर्क फ्रॉम होम है, कभी तो ऑफिस जाएंगे, वहां तो लेटर्स वगैरह लिखेंगे बिल्कुल मैनुअल, चलो पेन से नहीं, उस पे प्रिंटेड फॉर्म में तो लिखेंगे। वहां कोशिश करेंगे ऐसे वुड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा करें जो पढ़ने में अच्छे लगते हैं।
And if we have to make a question out of shall, like, shall we do that today? So yeah. इट इज करेक्ट, क्योंकि विल वी डू दैट टुडे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। विल से कभी मैं इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का क्वेश्चन नहीं फॉर्म कर सकती। सो शैल वी गो आउट या विल वी गो आउट, विल वी गो आउट तो गलत हो गया, इसलिए या तो मुझे शैल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर चले? yes. क्या हम आज बाहर जाएंगे, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इन अ सेंटेंस? क्या हम बाहर जाएंगे? हाँ। ओके। आर वी गोइंग आउट टुडे? आर वी गोइंग आउट टुडे? कैन वी गो आउट टुडे? बाहर जा सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। And like today itself I use this sentence, will it be okay to share? Is it correct or incorrect? Will it be okay if I share? Will it be okay if I share? ऐसा सेंटेंस था? नहीं, मैंने ऐसा बोला था, will it be okay to share? Yes, this was my sentence. ठीक है। Grammatically is it correct or incorrect? करेक्ट। Okay. तो वो एक्सरसाइज तो आज नहीं कराती, अभी थर्सडे को कराती वो वाली। पर ये लिख लीजिए आप लोग कि वुड का यूजेज पोलाइट फॉर्म के लिए होता है। रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग किसी भी सेंस में वुड हमेशा आपको एक पोलाइट मैसेज ही देगा। और वुड के साथ लाइक लगा दिया तो वो और भी ज्यादा प्रोफेशनली करेक्ट हो जाएगा। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी? वुड यू गो आउट विथ मी? वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? अब आजकल लोग है ना वुड की जगह पे कुड लगाने लग गए। कुड यू डू मी अ फेवर? कुड यू हेल्प मी? मेरे हिसाब से वुड ही अप्रोप्रिएट है एज पर द लॉजिक, क्योंकि वुड फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कह रहा है। वुड यू हेल्प मी? कब? कल? अभी? 10 मिनट बाद? फ्यूचर हो गया ना। कुड तो लेकिन पास्ट को ही सिर्फ पास्ट ही करेगा। चाहे अगर हमें कभी विल का कोई पास्ट इस सेंटेंस की नौबत नहीं आती, पर फिर भी समझाने के लिए कभी विल का कुछ पास्ट फॉर्म निकालना हो, पास्ट फॉर्म यूज करना, तो हम वुड लगा सकते हैं। हाँ, ये भी मैंने सुना है। हाँ, सही सुना है। पर लोग कंफ्यूज होते हैं, वुड को वो पास्ट सिनेरियोज में ही लगाने लग जाते हैं। जैसे yesterday I went for the movie, it would have been better, मतलब कुछ भी गलत सलत कुछ भी लगाते हैं वहां पे। पर उसका भी एक अगेन एक रूल है कि वुड पास्ट में कैसे लगाते हैं। जैसे yesterday I went for a movie, it would have been better if the actor was not XYZ. It would have been better, वो और अच्छी हो सकती थी अगर कोई और एक्टर होता तो उस मूवी में। तो ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ वुड लगा के, या मैं कुड भी लगा सकती थी, दोनों सही है। पर वुड को पूरी तरह से पास्ट में लगा देना गलत हो जाएगा। ऐसे समझ में आ गए क्या सारे? एक बार देख लो, शैल, कोई कंफ्यूजन ना रहे, शैल क्योंकि बड़े सारे वर्ड्स होते हैं ना सिमिलर। शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है स्वीटी? या ऑल ओके? या तो अब मेरे हिसाब से मैंने सारे मॉडल्स कर दिए हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, ought to, have नहीं बताया, needs to और used to। have to भी बता देती हूँ मैं। have is also a model। have to, have वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, पर अगर कभी have to की जरूरत पड़े ना तो आप उसे एज अ मॉडल यूज कर सकते हो। have to भी किसी तरह का कंपल्शन ही बताएगा। we have to follow this। we have to follow the rules। मतलब वो बड़ी जरूरी चीज है, कुछ इम्पोर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। you have to complete it by today itself। हाँ, like that। we have to follow the rules।
set Hmm. by the company. We must follow, we have to follow, दोनों ठीक है, दोनों जगह पे कंपल्शन ही पता चल रहा है. Yeah. स्वीटी, आपने हैव टू समझ लिया? स्वीटी, Sweetie, there is network problem. ठीक है, ये लिख लिया सबने? हाँ. ये सारे पॉइंट्स लिख लिए ना? ठीक है, ओके. अभी अदीबा, आप मुझे एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन बताओ जहां पे आप यूज्ड टू को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो. अपनी कोई बात, अपनी फ्रेंड की कोई बात, बचपन की, आप कुछ भी बता सकते हो. Hmm. When I completed my 12th standard, after that I joined BBA. But I was uh, in a college wherein BBA supposed to be BBA supposed to have include such activities in a college where we should we have to follow certain management rules, and wherein we have to ourselves involved in management activities, where my college did not allow me to do, not me, where every student do so, because it was not that good college. It was a good college, but not the activities which are needs to be there. They didn't conduct all of those things. Because of all of those issues, I could not able uh, to uh, to progress myself, wherein I could actually have to do that. Because being a BBA student, everybody assumes that your presentation skills has to be good, and your other skills, including communication skills, body language, all of those things matter. But I used to be a quiet student. I just silently attends lecture. But that I have realized when I joined MBA. In my MBA, I had my friends who used to be very proactive in taking initiatives, things in leaderships, managing things, because they in their college they could have find those opportunities to explore themselves, which I could not able to do that. Because of that reason, I was underconfidence. My communication skills was not up to the mark. So that is one of that reason, wherein I used to keep quiet at one place. Then one fine day, I realized that no, this is the high time, and I am in the MBA professional degree now, wherein I have to come out of from that zone. So then I started taking participation in debate, group discussion, since first week of my MBA degree when I joined. So I used then after that I used to take participation in many things, in no matter what knowledge I have, no matter how what people will think about my English. At that time, I one of a sudden I gained that confidence that yes, I want to do it. And that actually made me realize and learn me a lot of things. Because of that reason, I could able to crack many interviews after that. And and today also I am in the Edulite because of my confidence only. So I have overcome from my that challenge. Very good.
Very good, Adiba. Wonderful experience that you actually shared. Very Yeah. honest to talk about your shortcomings. Generally, people don't do that. Yeah. They don't accept if we have some shortcoming. They don't accept it. You did it very gracefully. Good. Yeah, because I have my friends, even they supported me a lot that yes, Adiba, you have the capabilities and you can do it. And because they were their presentation skills, I literally used to I was awful to see their presentation skills, while mine was totally opposite. I always, whenever, because in MBA and including BBA, we have to give presentations on alternate days basis. Sometimes there are certain surprises also wherein we have to give presentations. So I used to carry my notes with myself, and I am reading, including English. English was also not up to that mark, and so that is the real actually my experience which I shared. So when you said used to, so that incident clicked in my mind. Uh, Now, even I got lost in my MBA memories. I still remember we used to have a lot of presentations every now and then, and Yeah. toughest presentations of my life I've given in my MBA. My economics teacher, he's still a great teacher. I still like him very much for his work. He used to give us topics on NAFTA and AFTA. No. Can you imagine Okay. presentation topics on NAFTA and AFTA, global Yeah. scenarios? आई वॉज लाइक इस पे कोई प्रेजेंटेशन कैसे बनाएगा, चलो बना लेगा तो बोलेगा क्या, बोलेगा क्या, राइट। हालत खराब। और ऐसा नहीं कि हम सीरियस बच्चे थे, हमें तो पार्ट लेना है, पॉइंट्स भी अर्न करने हैं। उनके वो 10 में से 9 पॉइंट्स या 8 पॉइंट सुनने के लिए ना ऐसे कान तरस जाते थे। I was lucky. I was okay with my communication skills and my presentation skills too. I was very good with PPT making and things. But that NAFTA after, I still remember. Yeah, that topic कैसे is actually a bit complicated. इसका कोई presentation कैसे बना सकता है, मतलब? Yeah, right. So yeah, that was, yeah, but good experiences I still remember because that taught me a lesson every time Yeah, to fight with such things. Okay. yeah. Huh. Even I used to give many interviews, right after 8 months of my MBA, and I got rejected as well in many interviews. Me So too. that actually gave me a very good experience. So yeah, I always used to hold myself. Yes, no, I want to achieve that, and still that motivation and that confidence is there myself that this is not the end. I have to do more. Even I faced multiple rejections, Mm. multiple rejections. Some of the reasons were you are overqualified for this job. Okay. That actually not good to hear. Yeah. मतलब ओवर क्वालिफाइड इतनी Yeah. मेहनत के बाद भी यू फिर गेट बाद से में ज्यादा हो गया, ज्यादा पढ़ लिए क्या? होती है बहुत चीजें, बट ठीक है। जो मैं तो कहती हूँ होना होता है अच्छे के लिए ही होता है। इट्स ओके। actually लास्ट ईयर भी I don't know, I was struggling to get good projects, to get associated with good companies when I started as a freelancer, and I got multiple rejections, धड़ाधड़ एक के बाद एक के बाद एक. Some of them were not able to perform because of corona. Some of them did not select me for some or the other reason, so it was okay, no problem. yeah, actually things were critical in initial days because COVID has done a lot of things, but yes, even I'm grateful because Edulite gave me that opportunity wherein I am getting, which I had a dream that I want to work in all of these departments. So wonderful Okay, experiences. that's actually good. And Adiba, actually, okay, yes, you are fortunate enough to get Edulite. Edulite is also fortunate enough to get you. The kind of sincerity, like I know you from last 7-8 months. हो गया ना? November, Yeah. December, we started Yes. interacting. Yes. Your sincerity, your hard work, your approach towards learning things, taking up the things, that is also good. So I don't think a manager would have any problem from you anyways. Yeah. I'm always grateful to that. Nice to hear. Thank you for the compliment. Absolutely.
अच्छा, एक चीज, QUITE एंड QUIET, स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। सेकंड वाला जो है QUIET, शांत बच्चा, दैट बॉय इज अ क्वाइट चाइल्ड, तो इसे बोलेंगे क्वाइट, अट साउंड आनी चाहिए लास्ट में। ओके, quiet, क्वाइट, अट, क्वाइट साउंड। तो जैसे आपने अपने कॉन्वर्सेशन में बोला दैट यू वर शाय एंड यू वर अ क्वाइट स्टूडेंट, इट टुक यू टाइम टू कम फ्रॉम दैट जोन। और फर्स्ट वाला जो है QUITE, अक्सर बोलते हैं हिंदी में, ये ऐसा तो अक्सर होता है, इट हैपेंस Yeah. क्वाइट ऑफन, उसे बोलेंगे क्वाइट। Quite. And quit also similar, right, to this QUIT. हाँ, That is quit. to discontinue something, I quit the work, that means I'm discontinuing with this work. So quiet, quite, and quit. Is it okay? Correct? Correct, now it is correct. Yeah. Actually, I am still confused, but I'll have to learn, because like leave and leave, I still pronounce. I'm still pronouncing it in same way. Leave. वो पिक्चर लगाई, स्टिकी नोट लगाया कहीं दीवार पे, Nah, अभी I'll लगा, have to do that. Yeah. इतना सा इतने से पेपर को कहीं भी दीवार पे स्टिक कर लो कि वो सामने उठते बैठते दिखाई दे, जो सामने वाली दीवार हो ना आपकी आंखों के आगे, उस पे लगा दो, स्टार्ट डूइंग, ये बेस्ट तरीका है। और ये एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद ये चिट अपने आप हट जाएगी, क्योंकि वो वर्ड्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। मैं कैसे प्रोनाउंसिएशन ठीक करती हूँ, आज भी कोई मुझे सिखाता है, मैं 2 बार सुन के पूछ लेती हूँ, एक आधी बार गूगल से भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, और फिर ना बड़बड़ाती रहती हूँ। जैसे मैं चल रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, तो वॉक करते करते ना मैं उस वर्ड को बड़बड़ा रही हूँ माइंड में। जैसे ऑपोजिट, एक वर्ड आया था, आपने अपोजिट बोला, वर्ड इज ऑपोजिट, opposite, okay. तो अब सपोज मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैं वॉक कर रही हूँ एंड आई एम सेइंग मन में ऑपोजिट। तो मैं ऐसे अपना काम करते करते कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ एंड आई एम just blabbering the word in my mind, opposite. ये मेरी प्रोनाउंसिएशन का, खुद की प्रोनाउंसिएशन का बेस्ट एक्सरसाइज है। और ये जब मैं 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता करती हूँ ना, बस फिर उसके बाद मैं प्रो हो जाती हूँ, फिर मुझे वापस नहीं जाना पड़ता। अब वो क्योंकि बड़बड़ाने से ना वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो गया। तो ये एक तरीका है कि ठीक है, लगातार टाइम नहीं मिलता कॉपी नोटबुक लेके बैठने का, चलते चलते काम, नहाते नहाते बड़बड़ाने का, कभी भी। सो रिमेम्बर, ऑपोजिट एंड अपॉर्चुनिटी आज भी गलत आया, opportunity, because I didn't practice. मैं बार बार पॉइंट करूंगी ना, तो सबकॉन्शियस वहां जाएगा कि ये बार बार क्यों बोल रही है। अपॉर्चुनिटी, ऑपोजिट, दोनों में ऑपो साउंड है, साउंड अपो नहीं है किसी में भी। opportunity and opposite, अपो कहीं नहीं है, ऑरेंज, okay, opposite, yeah, it's when I say it, a sound is there, opposite. ऑरेंज याद रखो, ऑरेंज आसान है ना, Orange, ऑरेंज को yeah. हम अरेंज नहीं बोलते, ऑरेंज। तो उस ऑरेंज को याद रखो, उस ऑरेंज से बहुत भला होगा, बहुत सारे वर्ड्स और आएंगे और साउंड वाले जो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ऑरेंज आसान है, तो उसकी साउंड लेके हम कहीं भी इस्तेमाल करेंगे। Yeah, now I got it. मुझे समझ में नहीं आ रहा था where is that mistake, where I am pronouncing it wrong. Now I got it. I pronounce it as opposite, but it is opposite opportunity. इन्हीं का एक भाई है, ये थोड़ा अलग है अब। Okay. Opinion. ओपिनियन ठीक है,
ज्यादा सही ओपिनियन होता है, यहाँ पे ओपिनियन है। अच्छा मेरे को लगा ओ होगा इसलिए मैंने यहाँ पे ओ वाला ओई, मैं भी ओई बोलती ओपिनियन, बट वो ओपिनियन या ओपिनियन नहीं है। अब थोड़ा सा उसमें अ और ओ को थोड़ा सा ना मिक्स करके ओपिनियन ओपिनियन। ओपिनियन ओपिनियन भी ठीक है, या नहीं तो ओपिनियन आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है। ओपिनियन इन माय ठीक है, ओपिनियन दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, ऐसे हम बोल मैं सकते हैं ना। ओपिनियन, अ और ओ को ओपिनियन ऐसे करके बोलना अगली बार। अपन ओपिनियन नहीं ओपिनियन। ओपिनियन। I will take help of Google हाँ that shows lip sync so that हाँ will हाँ, work. ट्राई करना ये सारे वर्ड्स Yeah. एक बार आप प्रैक्टिस करना, उसी से आई एम श्योर आपको आइडिया लग जाए। Yeah, definitely I will do that. श्योर।